Hello students, today we start our problems on Laplace transform. Today our first problem is Laplace of 5 e power 2t minus 3 whole square. हमारी आज की पहली प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय Laplace transform. Today our lecture 2 on Laplace transform. Laplace of 5 e पावर 2t माइनस 3. सबसे पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से. a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a. इस फार्मूले से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 25 e पावर 40 माइनस प्लस 9 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 e पावर 2t. दिस इज इक्वल टू Laplace ऑफ 25 e पावर 40 माइनस 5 इंटू 2 10 into 3 30 e power 2t or plus 9. Now we apply L operator, Laplace operator on these functions. 25 जो कांस्टेंट वैल्यू है उस पर अप्लाई नहीं होता है Laplace operator. Laplace of e power 40 minus 30 Laplace of e पावर 2t एंड प्लस 9. यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पर लाप्लास हम 1 पर अप्लाई करेंगे. दिस इज लाप्लास ऑफ 1. नाउ वी यूज द स्टैंडर्ड फार्मूलेस. लाप्लास ऑफ e पावर 80, दिस इज 1 अपॉन s माइनस a. अकॉर्डिंग टू दिस here the value of a is 4, so the value of this function is 1 upon s minus 4 minus 30 and value of this is 1 upon s minus 2 and plus 9. Laplace of 1 equal to 1 by s. Here we have applied L operator on 1, then the value is 1 by s. We write this function in the form of 25 upon s minus 4 minus 30 upon s minus 2 plus 9 upon s. This is our answer. We solve this term one more step by taking LCM of this function. Now our second problem is find the Laplace transform of cos square 80. Find the Laplace transform of cos square 80. This is question number 2. Laplace of cos square 80. ये ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं इसमें. Now we know that cos 280, this is 2 cos square 80 minus 1. Here we find the value of cos square 80. Cos square 80 equal to cos 280 plus 1 upon 2.
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, फार्मूलेज नहीं होते हैं कोई भी, तो हम पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने cos 280 के फार्मूले से. The value of cos square it is cos 280 plus 1 upon 2. We replace this value here, cos 280 plus 1 upon 2, and apply the Laplace transform. L operator. 1 by 2 Laplace of cos 280 and plus 1 by 2 as a constant here, and L apply on 1. Now we know that Laplace of cos 80, this is 1 upon s square plus a square, s upon s square plus a square. So here the value of a is 2a. So this is a 1 by 2 s upon s square plus 4 a square plus 1 by 2, and Laplace of 1 is 1 by s. ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है. Now 1 by 2 is common here, and LCM of this function is s into s square plus 4 a square. Now solve this function. This is s cancelled by s square plus 4a square and plus s square. This is equal to 1 by 2 2s square plus 4a square upon s into s square plus 4a square. This is equal to, now we taking 2 as a common here, so 2 by 2 s square plus 2a square upon s into s square plus 4 a square, and 2 cancel by 2, we get the answer of this question, s square plus 2a square upon s into s square plus 4a square. क्लियर? यहां पर हमने जो फार्मूले से वैल्यू कैलकुलेट की थी cos स्क्वायर 80, उसको हमने रिप्लेस किया यहाँ पर, और दोनों फंक्शंस का अलग अलग हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया और उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है. दिस इज द our second problem. Now we taking third problem. This is very important problem. Find the Laplace transform of ft equal to t square, t is 0 to 2, t minus 1, this is 2 to 3, t is 2 to 3, and 0 when t is greater than 3. पहली दो प्रॉब्लम हमने प्रॉपर्टीज यूज की है, फार्मूले यूज किए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, उसको यूज करके सॉल्व किया है. यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन थी उसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन को देखकर हम उस पर अप्लाई करते हैं फार्मूले. हमें उसके फार्मूले से सॉल्व करना है, या जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है उसको यूज करके सॉल्व करना है. जो भी हमें आसान लगता है हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है 0 to 2, 2 से 3 एंड t इज ग्रेटर देन 3. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा फार्मूला है उसको यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए. वी नो दैट लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू 0 to infinity e power minus st ft dt. This is the standard formula of Laplace transform. Now we break the interval 0 to infinity as
और क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन में लिमिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक कर देंगे। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, पहला इंटरवल है हमारा 0 to 2, तो 0 to 2 एंड एफ टी फॉर 0 to 2 इज टी स्क्वायर ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस सेकेंड इंटरवल इज 2 to 3 and for interval 2 to 3 ft is t minus 1 e पावर माइनस एस टी, यहां पर हम रिप्लेस करते रहेंगे इसको वैल्यू को, इनटू डी टी प्लस थर्ड इंटरवल इज t greater than 3, the value of ft is 0, this is 3 to infinity and value of ft is 0 e पावर माइनस एस टी एंड डी टी। तो थर्ड इंटरवल में यहाँ पर एफ टी की वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म हमारी 0 हो जाएगी और हम इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे। टी स्क्वायर इज एफ टी, टी स्क्वायर की एफ टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी रिप्लेस कर दी है डायरेक्टली यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और फार्मूला इंटीग्रल यूवी dx। इस फार्मूले से ये काफी आसान हो जाएगा हमारा इंटीग्रल। दिस इज u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 प्लस एंड सो ऑन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन, v1 वाली जो टर्म्स है वो सारे इंटीग्रेशन को शो कर रहा है यहाँ पर, और जो यहाँ पर डैश लगा है वो डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन इज u एंड सेकंड फंक्शन इज v। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड अगेन इंटीग्रेशन प्लस थर्ड टर्म में डिफरेंशिएशन ऑफ u, यानी कि u डबल डैश था उसी को अगेन डिफरेंशिएट करना है u डबल डैश एंड देन v2 को अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो v3 हमारा आ जाएगा। ये टर्म को हम इसी तरह से लिखते रहते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट नंबर पर यहाँ पर प्लस और माइनस को हम यूज करते हैं। तो उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये t is u and v, t square first function and integration of second function is e power minus st, integration e power minus st upon minus s minus differentiation of first function 2t, then integration of second function e power minus st upon minus s into minus s, this is s square, plus third differentiation of first function 2t का differentiation 2 हो जाएगा और इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और आएगा यहाँ पर, तो माइनस एस क्यूब हो जाएगा एंड लिमिट इज 0 to 2. Now second function t minus 1 is as it is, integration of second function e power minus st upon, this is u and v, upon minus s minus t minus 1 differentiation is 1 and integration of this function is e power minus st upon s square। जब तक ये t वाला फंक्शन हमारा जीरो नहीं होता है, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने यहीं पर इसको ब्रेक कर दिया है। सेम हियर, जैसे ये सेकंड टर्म में 1 हो गया, नेक्स्ट टर्म में 0 हो जाएगा, तो हमने यहीं पर इसको छोड़ दिया है और इसकी लिमिट को अप्लाई कर देंगे। दिस इज 2 to 3। नाउ अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ t, वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज 2 स्क्वायर 4 e power minus 2s upon minus s minus 2 into 2 4 e power minus 2s upon s square plus minus 2, ये माइनस है यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस e पावर minus 2s upon s cube। now apply lower limit 0, प्लेस ऑफ t रिप्लेस करेंगे t को 0 से, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, देन सेकंड टर्म आल्सो 0 एंड थर्ड टर्म इज
e power 0 is 1 and minus minus plus 2 upon s cube. Now same in second term we replace 3 in place of t and lower limit 2 in place of t. 3 minus 1 is 2 e power minus 3s upon minus s minus e power minus 3s upon s square. Now apply the lower limit. 2 minus 1 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस साइन है यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट के साथ माइनस साइन लेते हैं हम मल्टीप्लाई में बाहर से, तो दिस इज 2 minus 1 is 1 and e power minus 2s upon s and minus minus plus e power minus 2s upon s square. Now we collect the same type of function here and get the final answer of this problem. e पावर, ये एक फंक्शन है हमारा, बिल्कुल अलग तरह का है, तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं हम यहाँ पर. दिस इज 2 अपॉन एस क्यूब प्लस e पावर 2s अपॉन s e पावर 2s अपॉन s, दोनों एक साथ लेंगे. ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, 4 अपॉन एस और ये 1 अपॉन एस, यानी कि माइनस 3 अपॉन एस, तो माइनस 3 अपॉन एस ई पावर माइनस 2s. ये टर्म दोनों हमने कंप्लीट हो गया. नाउ वी टेकिंग नेक्स्ट टर्म e पावर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर. Here e power minus 2s upon s square. This is minus 4 upon s square. This is 1 upon s square. This is minus 3 upon s square into e power minus 2s. ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. Now next term is s cube. Here s cube and एस क्यूब की इसमें और कोई टर्म हमें नहीं दिख रही है, तो एस क्यूब आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एस क्यूब ई पावर माइनस 2s. एंड एक लास्ट टर्म और यहाँ पर है हमारी, ये दो टर्म और बची है हमारी यहाँ पर, इन दोनों को लिख लेंगे. दिस इज माइनस 2 अपॉन एस इंटू ई पावर माइनस 3s and minus 1 upon s square e power minus 3s. और इसको थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर है, और इसको और छोटा करना है हमें, तो दिस इज 2 अपॉन एस क्यूब 3 अपॉन एस एंड 2 अपॉन एस. एक साथ ले सकते हैं हम इसको, इन दोनों में से हम यहाँ पर 1/s कॉमन लेंगे, एस स्क्वायर वाले टर्म में से एस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और एस क्यूब वाली टर्म में से हम एस क्यूब के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. तो माइनस 1 अपॉन एस इंटू ई पावर माइनस 2s एंड हियर 1/s, दिस इज 3 ई पावर माइनस 2s और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e पावर 2 e पावर माइनस 3s. नाउ s स्क्वायर को s स्क्वायर के साथ लेंगे, माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर, दिस इज 3 e पावर माइनस 2s एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस हमने कॉमन लिया है, e पावर माइनस 3s. ये भी कंप्लीट हो गया. अब एक टर्म सिर्फ हमारी बचती है, ये वाली, इसको लिख देते हैं. दिस इज माइनस 2 अपॉन एस क्यूब ई पावर माइनस 2s. दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. और अपने अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा बहुत आंसर में चेंज हो सकता है कॉमन लेने में, लेकिन फाइनली मेनली हमारा जो इंटीग्रेशन है वो करेक्ट होना चाहिए हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग. दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म. इसी टाइप की और भी बहुत सारी हम प्रॉब्लम ले सकते हैं. एक प्रॉब्लम और देखते हैं इस पर बेस हम.
Find the question number 4. Find the Laplace transform of ft equal to sin t 0 and 0 to pi and then t is greater than pi. इसको भी हम जो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी उसको यूज करके, उसके फार्मूले को यूज करके सॉल्व करेंगे. वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft equal to 0 to infinity e power minus st ft dt. Now we replace the value of ft here and break the interval 0 to infinity according to question. 0 to pi, 0 to pi, and ft for 0 to pi is sin t, e power minus st into sin t dt plus second interval t greater than pi, yani this is pi to infinity e power minus st and ft for this interval is 0 dt. Second function or second integration of this question is going to 0. Now we solve this function. ये फार्मूला हमने ऑलरेडी पहले भी यूज किया, एक बार और इसको लिख देते हैं. इंटीग्रल e पावर ax इंटू साइन bx dx, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. जो यहाँ कोफिशिएंट है उनको यूज करते हैं, a और b, और a साइन bx माइनस b cos bx, a sin bx माइनस b cos bx. इसके अकॉर्डिंग जो हमारी a की वैल्यू है माइनस s एंड b की वैल्यू इज 1, sin t कोफिशिएंट इज 1. तो दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस t अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू a इज माइनस s sin t and minus b is 1 cos t. लिमिट इज 0 to pi, 0 to pi को अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. e पावर माइनस पाई अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s sin पाई माइनस cos पाई. नाउ वी अप्लाई द लोअर लिमिट. माइनस e पावर 0 इज 1, e पावर 0 हो जाएगा 1, s स्क्वायर प्लस 1 and then we apply put 0 in place of t, so minus s sin 0 minus cos 0. This is the lower limit. So here sin pi is 0, cos pi is minus 1. We solve this. E power minus pi upon s square plus 1 into minus 1 minus minus plus, this is 1, minus 1 upon s square plus 1, sin 0 is 0, cos 0 is 1, this is minus minus plus, this is 1 upon s square plus 1, totally 1. Now 1 upon s square plus 1 is common in both of term, we get e power minus pi plus 1. This is our answer of this question. तो इस तरह से हमने आज 4 प्रॉब्लम ये की हैं, और फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे यूज करते हैं हम, कैसे फंक्शन पर अप्लाई करते हैं और कैसे उसके फार्मूलों को यूज करते हैं, वो हमने इसमें देखा. इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप और मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर इसमें क्वेरीज है या कोई डाउट्स है उसको आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.